Hello students, welcome to Eduate. In this video we will solve exercise 2.4. क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरीफाई द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials. Below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. So now polynomial is given. फर्स्ट विल बी द पॉलिनोमियल और इसके साइड में जो दिए हुए हैं दैट विल बी द जीरोज। सो जीरोज को क्योंकि दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड इसके साइड में जो दिए हुए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं अल्फा बीटा गामा. So alpha is 1 by 2 and beta is 1 and gamma is minus 2. So now we have to show that these are the 0. So that means P alpha should be 0. Value at the zeros it should be 0 means polynomial की जो value है 0 होनी चाहिए zeros पर. So P alpha should be 0, P beta should be 0 and P gamma should be 0. So P alpha is 1 by 2. So ये हम verify करके देखते हैं. So what about this P alpha? P alpha means P 1 by 2. X को 1 by 2 से replace करेंगे Px में. So it is equal to 2 into 1 by 2 cube plus 1 by 2 square minus 5 1 by 2 plus 2. Further इसको solve कर लेते हैं. 2 into 1 by 2 cube. So it will be 2 into 1 by 8 plus 1 by 2 square is 1 by 4 minus 5 by 2 plus 2. So this will be equal to 2 into 1 by 8 is 1 by 4 plus 1 by 4 minus 5 by 2 plus 2. 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं. LCM ले लेते हैं. 4 is LCM, so it is 1 plus 1 minus 10 plus 8. So this is 8, 9, 10. 10 minus 10 divided by 4. So it is equal to 0 by 4 means 0. So now P alpha is 0. That means it means 1 by 2 is a 0 of given polynomial Px. Now P beta is equal to P1. X को रिप्लेस करेंगे 1 से पॉलिनोमियल में. So it is 2 into 1 का cube plus 1 square minus 5 into 1 plus 2. Further इसको simplify करते हैं. So it is 2, 1 cube is 1 and 1 into 2 is 2. 1 square is 1. This is minus 5 plus 2. So now this is 5 minus 5 and 5 minus 5 is 0. So P beta means P1 is also. So it means 1 is a 0 of given polynomial Px. Now P gamma. So gamma की value is minus 2. So P, this P gamma means minus 2. So P minus 2. X को minus 2 से replace करेंगे polynomial में. So it is 2 minus 2 का cube plus minus 2 whole square minus 5 into minus 2 plus 2. So ये आ जाता है minus 2 का cube is minus 8. Minus 8 into 2 is minus 16 plus minus 2 का square is plus 4. Minus minus becomes plus. So plus 5 into 2 is 10 plus 2. So it is equal to 16 minus 16 and it is 0. So P gamma means P minus 2 is also 0. It means minus 2 is
a zero of given polynomial px. So this is verified. Alpha beta gamma means 1 by 2, 1 and minus 2 is 0, is the zeros of the given polynomial 2x cube plus x square minus 5x plus 2. Now we have to verify the relationship between zeros and coefficients. Now the first relationship is alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. अब हम b, a, b, c, d की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि देखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है दैट इज px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो यहां पर इस इक्वेशन को गिवन पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करेंगे. सो यहां पर देखिएगा a की वैल्यू अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, a की वैल्यू is 2, b is 1, c is minus 5 and value of d is 2. So alpha plus beta plus gamma is minus b by a. So alpha, we have alpha is 1 by 2, beta is 1 and gamma is minus 2. So it is minus b. Now minus 1, b is 1 by a 2. So इसको solve कर लेते हैं LCM लेके. 2 is LCM. So it is 1. Now इसको 1 को 1 by 1, 2 को 1 by 2 by 1 लिख सकते हैं. So ये आ जाएगा 2 minus 4. So this is equal to minus 1 by 2. Now इसको solve करेंगे. 2 plus 1 is 3 minus 4. 3 minus 4 is minus 1. So it is minus 1 by 2 is minus 1 by 2. So it is true. True means this relation is verified. First relation is verified. अब हम सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे. सेकेंड रिलेशन क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इट इज इक्वल टू डी बाई ए. नाउ अल्फा बीटा यानी अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज 1 बाई 2. सो 1 बाई 2, बीटा इज 1 प्लस बीटा इज 1, गामा इज माइनस 2 प्लस गामा माइनस 2 रख देते हैं. अल्फा इज 1 बाई 2. सो दिस इज डी बाई ए एंड डी की वैल्यू है यहाँ पर डी इज 2, ए इज 2. सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 1 बाई 2 इंटू 1 इज 1 बाई 2 माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 इज माइनस 1. सो दिस इज 2 बाई 2 इज 1. सो इसमें देखिएगा क्योंकि जो रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी वाई ए, इट इज सी वाई ए. और तीसरा जो रिलेशन है अल्फा बीटा गामा इज डी वाई ए. सो सी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे. सी की वैल्यू इज माइनस 5. सो हियर विल बी रिप्लेस 2 बाई माइनस 5. सो इट इज माइनस 5 बाई 2. फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. देखिएगा सो ये आ जाता है. देखिए यहाँ पर 1 आएगा. 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं. सो हियर विल बी 4 और यहाँ पर 2 आएगा. सो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं. देखिएगा 1 माइनस 4 माइनस 2 इज 1 माइनस 6. 1 माइनस 6 इज माइनस 5. सो माइनस 5 बाई 2 is equal to minus 5 by 2. This is true. So this is true means this relation, the relation alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c by a. This is true. This is verified. Now third relation alpha beta gamma is d by a. Alpha is 1 by 2, beta is 1, gamma is minus 2. D, value of d is 2, a की value is also 2. So now value of d, you know this value is d is 2. It's okay. D अपन a रख लिया हमने. Alpha beta gamma, alpha is 1 by 2, beta is 1 and gamma is minus 2. So alpha beta gamma is minus d by a. Okay, this relation is minus d by a. So it is minus 2 by 2.
So now 2 से 2 cancel हो गया. Now it is -1 and -2/2 is -1. So -1 is true. So this relation is also verified. पार्ट में दिया हुआ है polynomial cubic polynomial Ex is x cube minus 4x square plus 5x minus 2. तो अगर इसको कंपेयर करें px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d से, तो a की वैल्यू is 1, b is -4, c is 5 and d is -2, and alpha is 2. This is alpha 1, this is beta, and third 0, this is gamma. So alpha is 2, beta is 1, gamma is 1. Now we have to verify 2, 1, 1 are 0. So P alpha should be 0, P beta should be 0, P gamma should be 0. Means P2 it should be 0, P1 also should be 0. Similarly, so third root is 1. So P1 को sufficient है, P1 0 कर लें. So P2 is equal to, so 2 cube minus 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2. इसको further देखेगा, 2 cube is 8, 2 square is 4, 4 into 4 is 16. So plus 5 into 2, 10 minus 2. So this is equal to 18 minus 18 and it is 0. So P2 is 0. So now P1 is 1 cube minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2. So it is equal to 1 cube is 1 minus 1 square is 1. 1 into 4 is 4. So it is plus 5 minus 2. So now this is equal to 6 minus 6 and it is 0. So P2 is 0, P1 is 0. It means 2 and 1 are zeros of given polynomial Px. अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे. रिलेशन देखिएगा. रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. दिस इज माइनस बी बाई ए. दिस इज फर्स्ट रिलेशन. सेकेंड रिलेशन is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. This is equal to C by A. And third relation, alpha beta gamma is minus D by A. Alpha beta gamma, alpha is 2, beta is 1, gamma is 1. So this is minus B. B की value is minus 4 and A की value is 1. Alpha beta यानी 2 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 2. This is equal to C by A. C is 5, A is 1. Now this 2, 1 into 1. This is equal to minus D. D is minus 2 divided by A is 1. So यहाँ पर 2 plus 1 is 4. And this is minus minus 4. 4 by 1 is 4. So this is true. So this is true means this relation is verified. Relation alpha plus beta plus gamma is verified. Now इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 2 1 is 2, 2 plus 1 1 is 1, 1 2 is 2. So this is 5 by 1 is 5. So 5 is equal to 5. It is true. So this is true means this relation alpha beta beta gamma plus gamma alpha is C by A. This is verified. Now alpha beta gamma is minus D by A. So 2 1 1 is 2 and minus minus 2 is 2. 2 by 1 is 2. So this is true. So this last relation is also verified. अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros are 2 minus 7 and minus 14 respectively. So देखिएगा सम दिया हुआ है. सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा. zeros are alpha beta and gamma. So sum is given 2. So
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2, इसको हम लिख लेंगे। और दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा plus gamma alpha, this is given -7, and alpha beta and gamma it is given -14. So sum दिया हुआ है, sum of the product of its zeros means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, this is -7, and the last product of its zeros means alpha beta gamma, it is given -14. So now the relation between coefficients and जीरोज, इसको हम यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई ए। सो इसको हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा दिस इज माइनस डी बाई ए। तो इनको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1, 2, 3 के साथ। तो माइनस बी बाई ए आ जाता है 2, और सी बाई ए हम कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू -7, एंड माइनस डी बाई ए विल बी इक्वल टू -14। सो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, -7 को -7/1 लिख सकते हैं, और -14 को -14/1 लिख सकते हैं। सो इन तीनों से हम कह सकते हैं, तो a को हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। सो इफ a इज 1, a को अगर हम 1 ले लेते हैं, देन इक्वेशन इसको हम 4, 5, 6, इफ a इज 1 देन इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं कि v की वैल्यू आप कंपेयर कीजिएगा, minus b will be 2 means b will be -2, and equation 5 से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो a1 के लिए c की वैल्यू देखिएगा, c will be -7, एंड इक्वेशन 6 से d की वैल्यू आ जाती है, a is 1, a हमने 1 लिया, तो -d is -14 means d is equal to 14। सो नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a b c d की वैल्यू रख देते हैं। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा आ जाता है a is 1, so 1 into x cube, that means x cube only, प्लस b is -2, so -2x² हो जाता है, c is -7, तो इसको -7x लिखेंगे, प्लस d is 14, so it will be 14। पॉलिनोमियल px, क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to x cube -2x² -7x प्लस 14, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज को हम अल्फा बीटा गामा कहेंगे। These zeros are given are a minus b, a and a plus b. So a minus b is alpha, a is beta, and a plus b is gamma. Find a and b. तो इसमें हम रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px is equal to x cube minus 3x² plus x plus 1। इसको हम कंपेयर करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में। तो इसको कंपेयर करने से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 आ जाती है, b को हम -3 लिखेंगे, c will be 1 and d will be 1। सो a b c d वैल्यू हमने फाइंड कर ली इसको कंपेयर करके। सो नाउ वी नो द रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू -b/a। अब हम अल्फा बीटा गामा और b और a की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो अल्फा इज a - b,
this is a minus b plus beta, beta is a plus gamma, gamma is a plus b is equal to minus b is minus 3 and a is 1. So यहाँ पर देखिएगा b से b कैंसिल हो गया, तो 3a is equal to 3, minus minus 3 is plus 3, 3 by 1 is 3. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू is 3 by 3 means a की वैल्यू is 1. a हमने फाइंड कर लिया. अब सेकंड रिलेशनशिप यूज करेंगे हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is equal to, this is equal to c by a. So alpha is a minus b, beta is a plus beta gamma is a, gamma is a plus b plus gamma alpha is a plus b, alpha is a minus b. So this is equal to c by a, and c की value is 1, a की value is also 1. So now a minus b into a, इसको ओपन कर देते हैं. So it is a square minus ab plus a plus b is a square plus ab, and इसमें algebraic identity यूज करेंगे. It is a square minus b square. a plus b, a minus b is a square minus b square. So this is equal to 1 by 1 is 1. So यहाँ पर minus ab से plus ab कैंसिल हो जाएगा. So यहाँ पर a square plus a square is 3a square minus b square is equal to 1. a हमने फाइंड किया हुआ है, so उसकी वैल्यू रख देते हैं. 3 into 1 square minus b square is 1. So this means 3 1 square is 3 only. 1 square is 1, 1 into 3 is 3, minus b square is 1, means minus b square is 1 minus 3. So minus b square आ जाता है minus 2, minus से minus कैंसिल हो गया. So b is equal to 2. b square is equal to 2. So now b is equal to under root of 2. इसको हम प्लस माइनस 2 कह सकते हैं, क्योंकि प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होता है, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होता है. सो b की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट 2. सो हेंस a की वैल्यू हमने फाइंड की, a इज 1 एंड b की वैल्यू b इज प्लस माइनस अंडर रूट 2. ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, if two zeros of the polynomial px दिया हुआ है, x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. If two zeros are 2 plus minus root 3, find the other zeros. सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेंगे. पॉलिनोमियल px is equal to x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. अब हम इसके क्योंकि रूट्स दिए हुए हैं, 2 अल्फा इज 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड बीटा इज 2 माइनस अंडर रूट 3. सो x माइनस अल्फा and x minus beta, these will be x minus alpha, x minus beta, these will be the factor of the given polynomial. So now x minus alpha and x minus beta are factors of px. So अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, means x minus alpha into x minus beta, this is also factor of px. अब x minus alpha, x minus beta को हम सॉल्व कर सकते हैं. So और दूसरा तरीका इसका ये है कि अल्फा मीन्स x की वैल्यू, these are the values of x. तो अगर हम इसको यानी x will be 2 plus root 3 and x will also be 2 minus root 3. So factors देखिएगा, जीरो का मतलब क्या है कि x की डिफरेंट वैल्यूज, यानी यहाँ पर एट मोस्ट 4 वैल्यूज होंगी x की, जो जिनको कि जीरोस करेंगे इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x is equal to 2 plus root 3 and x is also at 2 minus root 3. तो ये दिया हुआ है.
और कंबाइंड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। तो अगर हम 2 को साइड चेंज करेंगे तो x माइनस 2 विल बी प्लस माइनस रूट 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल गिव अस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab means a square minus 2ab, so minus 4x plus b square plus 4 is equal to plus minus root 3 का स्क्वायर 3 होगा। अब 3 को साइड चेंज करके हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x plus 1 is equal to 0. Now this will be the factor of polynomial. So x square minus 4x plus 1 is a factor of given polynomial px. अगर ये फैक्टर है तो इस px को डिवाइड करेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इस px को डिवाइड करेगा, तो इसका डिवीजन हम कर लेते हैं। सो लेट अस डिवाइड दिस px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो यहाँ डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, और px लिख लेते हैं x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब फर्स्ट टर्म देखिएगा क्या होगा कोशेंट का, x4 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह से अदर टर्म्स निकालेंगे हम। तो पहले एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके px के नीचे लिखेंगे। सो इट विल बी x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, x4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस 2x क्यूब और माइनस 20x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 27x स्क्वायर। अब 138x और माइनस 35 इसके साथ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस 2x। सो माइनस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस 2x क्यूब और प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। अब हम साइंस के चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाता है, 2x क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x और माइनस 35। नेक्स्ट टर्म माइनस 35 होगा, माइनस 35 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 35x स्क्वायर कैंसिल, 140x कैंसिल, 35 कैंसिल, सो रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर is 0, so this quotient qx, this will be the factor of polynomial. So it means x square minus 2x minus 35 is a factor of polynomial px। तो इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, 35 is 7 into 5, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, 7 माइनस 5 is 2, सो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। फर्स्ट टू टर्म से x इज कॉमन, x माइनस 7 बचेगा, सेकेंड टू टर्म से 5 इज कॉमन, x माइनस 7 बचेगा, x माइनस 7 इज कॉमन, रिमेनिंग विल बी x प्लस 5। सो हम कह सकते हैं कि x माइनस 7, x प्लस 5 आर फैक्टर्स ऑफ px। इट मीन्स x माइनस 7, x प्लस 5
आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। सो फैक्टर्स को जीरो रखेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा। सो x minus 7 is equal to 0, x is 7 and x plus 5 is equal to 0, it will give x is equal to minus 5. So now minus देखिएगा 7 and minus 5 will be other zeros of the polynomial. So other zeros of polynomial px are minus 5 and 7. So दो जीरो पहले से ही दिए हुए हैं, 2 प्लस माइनस √3. सो अदर टू जीरोस हमने फाइंड कर लिए, दैट इज minus 5 and 7, और ये आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है x4 minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10, तो ये px की वैल्यू होगी, यानी पॉलिनोमियल होगा, इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल, सो ये gx होगा। दूसरा पॉलिनोमियल है x² minus 2x plus k and the remainder comes out to be x plus a, so this will be rx remainder. We have to find the value of k and a. अब हम इसको px को gx से डिवाइड करेंगे। सो gx लिख लेते हैं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, x² minus 2x plus k। px लिख लेते हैं, px is x4 minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10। अब फर्स्ट टर्म देखिएगा x² होगा, फर्स्ट टर्म के लिए x4 by x² करना है, यानी फर्स्ट टर्म px का, फर्स्ट टर्म gx का, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ qx मिल जाएगा x²। अब x² को x² minus 2x plus k से मल्टीप्लाई करेंगे, px के नीचे लिखेंगे तो यही आ जाता है x4 minus 2x³ plus kx²। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, x4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस 6x³ plus 2x³ minus 4x³ रिमेनिंग। नाउ 16x² minus kx², x² कॉमन ले लेंगे तो 16 minus k ब्रैकेट में और x² हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग टर्म्स को लिख लेंगे px के 15 25x plus 10। अब हम नेक्स्ट टर्म हमारा -4x होगा, तो -4x से gx को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर आ जाएगा -4x³ -4x को देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, तो ये आ जाएगा 8x² प्लस 8x² और -4x को k से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -4kx, सो -4kx। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे, सो यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 4x³ कैंसिल हो गया। अब x² देखिएगा यहाँ कॉमन ले लेंगे, 16 minus k x², ये यहाँ पर साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 16 minus k x² ब्रैकेट माइनस 8x², अगर हमने कॉमन लिया तो ये आ जाता है 16 minus k minus 8, सो x² 8 minus k। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यानी 8 minus k इंटू x² आ जाता है -25x प्लस 4kx। तो यहाँ पर फिर से हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने से यहाँ पर ब्रैकेट 4k प्लस का है, प्लस का पहले लिखेंगे -25x, 10 को हमने रिमेनिंग टर्म को लिख लिया यहाँ पर। सो नाउ नेक्स्ट टर्म देखिएगा इस तरह से लेंगे कि ये फर्स्ट टर्म, इसका जो रिमेनिंग टर्म है, पहला टर्म कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हम 8 minus k लेंगे। सो यहाँ पर 8 minus k लेने से देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ,
तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 माइनस के को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, और 8 माइनस के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस के इंटू के। अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिएगा ये आ जाता है 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस, ये प्लस का हो गया 2 8 माइनस के इंटू एक्स। अब हम x कॉमन ले लेंगे तो 4k माइनस 25 और इसको प्लस 2 इंटू 8 16 माइनस 2k, तो ये आ जाता है x इंटू 4k माइनस 2k, 4k माइनस 2k इज 2k। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, 2 इंटू 8 इज 16, 18 लिखा हुआ है, सो दिस इज 16। अब 16 लिखने से देखिएगा यहाँ पर माइनस 25 प्लस 16 ये आ जाता है माइनस 9, सो ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस 9 इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 2k माइनस 9 इंटू एक्स, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 10 प्लस का और 10 देखिएगा लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर पहले इस टर्म को लिख लेते हैं माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, दिस इज रिमेनिंग। नाउ इससे फर्दर हम नहीं करेंगे आगे, क्योंकि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, इट इज गिवन, इट इज x प्लस ए, सो इट इज लीनियर टर्म दिया हुआ है x प्लस ए, तो ये इस x प्लस ए की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है रिमाइंडर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर इज इक्वल टू x प्लस ए, और डिवीजन करने से रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, रिमाइंडर इज 2k माइनस 9, दिस इज rx, दिस इज rx। सो एंड क्वेश्चन में ये rx दिया हुआ है, तो इसको हम इसके इक्वल करेंगे, यानी 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट इज 2k माइनस 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट इज 1, दिस इज 1 हियर, so we can say 2k minus 9 is equal to 1. So it means 2k is equal to 1 plus 9 means 10. So k is equal to 10 by 2 means k is 5. k की वैल्यू 5 हमने निकाल ली। अब दूसरा टर्म जो इसमें बचा हुआ है, दैट यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर a है, सो a किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेट करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10 विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि देखिएगा x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिएगा लीनियर टर्म x प्लस ए, तो x का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट टर्म इज ए, और इधर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें x का कोफिशिएंट इज 2k माइनस 1 और कांस्टेंट टर्म इज दिस, तो हम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे। अब k की वैल्यू हम रख देते हैं, so it is minus 8 minus 5 into k is 5 plus 10 is equal to a, means a will be equal to 10 पहले लिख लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। 8 minus 5 is 3, 3 into 5 is 15, so 10 minus 15 means a आ जाता है minus 5, so a की वैल्यू minus 5 फाइंड कर ली, so a is minus 5 and k की वैल्यू is 5, so this is the answer. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate, Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.